Hello everyone. Today's topic is the explanation about the tenses. So tenses are of three types: past, present, future. In this video, we'll learn about the usage of a single word with an ample of times according to the changing situation. For example, let's say about eat. So eat is used as eats, eating, eaten, and ate. So it will depend upon the timing and the situation and how we can use a single word with ample of situations. So in this video, we'll trigger only the first type of the tense, that is the present tense. So present tense, that is of four types: simple present, which is also known as indefinite tense; present continuous. Nowadays, present continuous is known as present progressive tense. Third is present perfect, and last is present perfect continuous or present perfect progressive. Present tense simple in English is used to describe an action that is regular, true or normal. सो इंग्लिश में जब हमें किसी एक्शन के बारे में बताना है जो कि हम रेगुलर करते हैं, जो सच है और जिसमें हम किसी नॉर्मल सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. In simple present tense, the action is simply mentioned and there is nothing being said about its completeness. So simple present tense में जब कोई काम हो रहा है, जब हम किसी verb के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर उस verb यानी कि उस action या काम के बारे में हम complete नहीं बताते. हम ये नहीं बताते हैं कि वो काम हो रहा है या वो particular काम हो चुका है. It is used to talk about an action which happens on a regular basis. Simple present tense उन actions के बारे में बताता है जो normally, regularly action में आते हैं. वो actions जो हर रोज ही दोहराए जाते हैं. Now let's go with the example of simple present tense. For the better clarification, here the sentence is divided into three parts. First is subject, second is verb, and the last thing is that rest of the sentence is the predicate. So I study in Texas school. You study in Texas school. He studies in Texas school. So ये एक ऐसा काम है जो नॉर्मली होता है. मैं भी जा रही हूँ स्कूल, तुम भी जा रहे हो. यहाँ डिफरेंस ये है कि आई एंड यू के साथ नॉर्मल स्टडी वर्ड यूज़ किया है एंड ही के साथ स्टडीज़. ये इसलिए बिकॉज ही इज़ अ थर्ड पर्सन. सिंपल प्रेजेंट टेंस में और भी बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं एस ई एस के अलावा. इज़ एम आर प्लस वर्ब. ही इज़ एन इंग्लिश टीचर. आई एम एन इंग्लिश टीचर. तो इज़ यूज़ होता है ही शी इट के साथ में, एम यूज़ होता है आई के साथ में, एंड आर वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ हमने बताना है एक से ज़्यादा कोई इंसान है. इंसान या कुछ भी, हमने जब किसी का नंबर बताना होता है जो एक से ज़्यादा है. अदर वर्ब्स, he teaches English, I teaches English, where we can use simple present tense. When we are expressing journal truth, हम जब कोई सच्चाई बताते हैं जिसके बारे में सबको पता है. The sun rises in the east. सबको पता है that sun east से rise करता है. जब हम किसी की habit बताते हैं, I play badminton every Tuesday. Future timetables. Our train leaves at 9 a.m. Future after when or until. I won't go out until it stops raining. तो अब हम यहाँ फ्यूचर की बात बता रहे हैं जहाँ हम बताते हैं until वर्ड का यूजेज. I won't go out until it stops raining. मैं तब तक बाहर नहीं जाऊँगा जब तक बारिश रुक नहीं जाती है. सो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेज वहाँ भी करते हैं जब हमने when मीन्स जब, until मीन्स तब तक, इस तरह के दो वर्ड्स का यूज करना होता है. दैट सिचुएशन एज वेल वी यूजेस सिंपल प्रेजेंट टेंस. Sometimes at present situations like he works in a bank. For newspaper headlines, man enters space. With non-progressive means जहाँ हमने ing नहीं यूज़ करना है, जहाँ हमने किसी भी चीज़ का continuous action नहीं बताना है. I believe that you are innocent. मैं ये मानता हूँ कि तुम innocent हो. When telling stories, suddenly the window opens and the masked man enters. So हम simple present tense का वहाँ भी यूज़ करते हैं जब हमने stories बतानी होती हैं. And the last one is for giving direction and instructions. जब हमें किसी को किसी काम के बारे में बताना होता है या किसी जगह के बारे में बताना होता है, directions बतानी होती हैं. First of all, you break the eggs and whisk with sugar. पहले तुम अंडा तोड़ो और चीनी के साथ में से whisk करो. Now this is the problem which comes with everyone, like where to use s, es,
IES. So let's go with this. Simple rule क्या है? Mostly we uses S with ample of verbs like live, lives, sit, sits, stay, stays. अब problem क्या है कि ES किसके साथ में यूज़ करना है? Simple S और IES कहाँ यूज़ करना है? So here's the answer to your query. Ending with consonant plus Y. अब जो वर्ड्स कंसोनेंट्स के साथ में एंड हो रहे हैं प्लस उनके साथ में क्या है? वाई है. वाई कट करते हैं एंड IES यूज कर देते हैं. नाउ ES कहाँ यूज करना है? वो वर्ड्स जिनकी एंडिंग S, Z, CH और X के साथ में होती है वहाँ हम यूज करते हैं ES. जैसे मिस, मिसेस, बज, बजेस, कैच, कैचेस, फिक्स, फिक्सेस. बट ये जो रूल है ये हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं वर्ड्स तक स्टेगनेंट है. कई वर्ड्स हैं जैसे गो, डू, जब हमने इनकी पोलैरिटी बतानी होती है तब भी इनके साथ में ES यूज़ होता है. बट ये जो रूल है ये 90% इन्हीं वर्ड्स पर है. सिंपल प्रेजेंट को रिवाइज कर लेते हैं हम. सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? एक एक्शन होता है जो ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली होता ही है. लाइक Marshall jogs every day. He usually jogs at night. So ये कुछ examples हैं simple present tense की. I get up early every morning. She plays tennis every weekend. Cats like milk. So she के साथ plays है, play के साथ S है because she is a third person. These are the few examples of simple present tense to make your understanding more durable. My son lives in London. She plays basketball. He goes to football every day. He loves to play basketball. Here we'll learn about the positive, negative and question sentences of simple present tense. Positive: his wife sets the table. Negative: his wife does not set the table. Question: does his wife set the table? I like fruits. I do not like fruits. I like fruits. So students यहाँ पर change क्या है? His wife sets the table. Does wife sets the table? His wife doesn't sets the table. अब wife के साथ में क्या use किया गया है? Doesn't है. Whenever we want to talk about the third person, we'll use does, and when there is a single person, we'll use do. So we is also a single person. We do not love flying kite. Now we'll talk about the another tense, that is present continuous tense, which is also known as present progressive tense. Rules क्या है? Verb, subject plus ing. Is she flying to London tomorrow? क्या वो कल लंदन जा रही है? जा रही है, so flying. रूल्स जान लेते हैं कंटिन्यूअस टेंस के क्या है? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब आईएनजी, एंड सो एज इन द नेगेटिव विल यूज नॉट. नाउ विल टॉक अबाउट द यूजेज. डिस्क्राइबिंग समथिंग विच इज हैपनिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच. जब हमें कोई बात बतानी होती कि अभी कुछ हो रहा है, जैसे आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग, सो ये एक चीज़ है जो अभी हो रही है. Describe an action that is taking place now but not at exact moment of speech. जब हमने कुछ बताना होता है कि अभी हो रहा है बट अभी यहाँ नहीं हो रहा है, कहीं और हो रहा है. इट इज़ रेनिंग इन USA, तो USA में अभी बारिश हो रही है, दैट इज़ वाई ING. डिस्क्राइब एन इवेंट प्लान्ड इन द फ्यूचर. जब मुझे कोई बात बतानी है कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा. आई एम टेकिंग माई फ्रेंच क्लासेज ऑन ट्यूजडे. मैं ट्यूसडे से अपनी फ्रेंच क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ. नाउ द फोर्थ सिचुएशन इज टू डिस्क्राइब अ टेम्परेरी सिचुएशन. जब हमें टेम्परेरी सिचुएशन बतानी होती है कि मैं कुछ टाइम के लिए हूँ. आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड फॉर फ्यू डेज. मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ. Another situation of present progressive tense is to emphasize an action. Emphasize means focus. जब हमें किसी एक्शन पे फोकस करवाना होता है. द चाइल्ड इज ऑलवेज क्राइंग. बच्चा हमेशा ही रोता रहता है. टू डिस्क्राइब चेंजिंग सिचुएशन. हिज हेल्थ इज इम्प्रूविंग. उसकी हेल्थ इम्प्रूव कर रही है.
Present continuous tense, it started in the past and ends in the future. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम ऐसा एक्शन बताते हैं जो अभी हो रहा है, जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और फ्यूचर में जाके ख़त्म होगा. लाइक मार्शल इज जॉगिंग, ही इज़ जॉगिंग राइट नाउ. मार्शल जॉगिंग कर रहा है और वो अभी जॉगिंग कर रहा है. These are the few examples of continuous tense. I am doing well, you are studying, then only you'll get good marks. They have been going on a course to learn English for a long time. So अब यहाँ इन 6 sentences में हमने क्या देखा है, ये situations अभी हो रही हैं. So this is the pictorial reference of present continuous tense. The birds are flying high. पंछी काफ़ी ऊंचे उड़ रहे हैं. The kids are playing in the park. बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. Positive, negative and questioning of the present progressive tense. I am starting. I am not starting. Am I starting? I है, I के साथ am ही यूज़ होता है. कोई भी सिचुएशन हो, I के साथ में am ही यूज़ होगा. I am starting, मैं शुरू कर रही हूँ. I am not starting, मैं शुरुआत नहीं कर रही हूँ. Am I starting, क्या मैं शुरुआत कर रही हूँ. इस तरह से हमें पता चलता है कि हमने प्रोग्रेसिव टेंस की यूजेज कैसे करनी है. Now we'll talk about present perfect tense. First we learn about the rules of the present perfect tense. If subject, has, have plus past participle. Negative sentences, subject plus have not, has not plus past participle. Question mark, question sentences, has or have plus subject plus past participle. So students, हम normally confuse होते हैं have और has के बीच में. Have and has are both used to denote possession, form the perfect tense, and the past tense of both is had, but they are used differently. हैज़ और हैव बताते हैं पोजेशन. पोजेशन मीन्स किस तरह का सेंटेंस चल रहा है, सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है. बट इन दोनों का मीनिंग एक है, बट इनके जो यूजेज है, जो इनका मीनिंग है, वो डिफरेंट है. हैव इज़ यूज्ड विद प्रोनाउंस आई, यू, वी, दे. हैव कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन से प्रोनाउंस के साथ में, आई, यू, वी, दे. और कहाँ यूज़ होता है, जहाँ हमारा नाउन एक से ज़्यादा होता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद प्लूरलाइज्ड नाउन्स, जहाँ हमारा नाउन एक से ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी हैव की यूजेज होती है. अब हम नाउ वी यूज हैव विद आई, यू, वी, दे. आई हैव अ पेंसिल, वी हैव अ बिग हाउस. अब हैज़ कहाँ यूज़ होता है, हैज़ इज़ यूज्ड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर. अब थर्ड पर्सन के साथ में हैज़ यूज़ किया जाता है. थर्ड पर्सन कौन सा हो गया, ही, शी, इट. और कहाँ यूज़ किया जाता है, इट कैन ऑल्सो यूज्ड व्हेन यू आर रेफरिंग टू समवन बाय नेम. हैज़ वहाँ भी यूज़ किया जाता है जब हम नाउन को उसके प्रॉपर नाउन से बुलाते हैं या नेम करते हैं. She has dark hair and brown eyes. She हो गया थर्ड पर्सन. Japan has a population of over 120 million. अब जापान है, प्रॉपर नाउन आ गया, नाम है किसी चीज़ का, नाम के साथ भी हैज़ यूज़ होता है. Now we'll talk about the usage of present perfect tense to express things you have done in your life. जब आपने अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ों के बारे में बताना है जो आपने किया है. She has never studied Japanese. उसने कभी भी जापानीज़ नहीं पढ़ी है. To express number of times you have done something. जब आपने बताना है कि आपने कोई चीज़ बहुत बार की है. How many times have you tried to call her? तुमने उसे कितनी बार कॉल करने की कोशिश की है. To describe recently completed actions which are important now. जब आपने बताना है कि आपने कोई काम अभी किया है और वो आपके लिए कितने ज़रूरी हैं. I have some bad news. I've lost my job. मेरे पास एक बुरी खबर है, मैंने अपनी नौकरी खो दी है. To express situation that started in the past and still are true. हमने कोई ऐसे सिचुएशन के बारे में बताना है जो पास्ट में शुरू हुई है और अभी भी चल रही है. I've known James for 4 or 5 years. मैं जेम्स को 4-5 साल से जानता हूँ. Another situation of present perfect tense is to describe unfinished action or situation. जब आपने कोई ऐसा काम बताना है या कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में बताना है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है. I've read
हाफ ऑफ द बुक, मैंने आधी किताब पढ़ ली है. टू एक्सप्रेस प्रेजेंट रिजल्ट, जब हमने अभी का रिजल्ट बताना है. जॉन हैज़ मिस्ड द बस सो ही विल बी लेट. जॉन ने अपनी बस मिस कर दी है और वो लेट हो जाएगा. अब जॉन इज अ प्रॉपर नाउन, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड हैज़ विद द जॉन. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. एक ही बात याद रखनी है, हैव लगता है एक से ज़्यादा नाउन पर, हैज़ हम यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन पर. In present perfect tense, the action finished some time before now. Specific time is not important. Examples. इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन होता है वो कभी कभार टाइम से पहले हो जाता है, और इस टेंस में हमें एक स्पेसिफाइड टाइम बताने की ज़रूरत नहीं है. लाइक मार्शल हैज़ जॉग्ड, उसने जॉग कर लिया है. मार्शल ने जॉग कर लिया है. ही हैज़ जॉग्ड ऑलरेडी, उसने ऑलरेडी जॉग कर लिया है, खत्म हो गया ये काम उसका, अभी कुछ नहीं हो रहा है. सो दीज आर द फ्यू पिक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. शी हैज़ जस्ट वाटर्ड द प्लांट, उसने अभी पौधों को पानी दिया है. शी हैज़ सर्व द मील, उसने मील सर्व कर दी है. विल गो विद फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पीपल हैवंट ट्रेवल्ड टू वीनस, लोग वीनस नहीं गए हैं. पीपल है, एक से ज़्यादा है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग हैव. एलेक्स हैज़ स्टडीड 2 फॉरेन लैंग्वेजेस. एलेक्स अब यहाँ एक प्रॉपर नाउन है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग हैज़. So now we are going with the positive, negative and question sentences of present perfect tense. I have seen, I haven't seen, has I seen. You have seen, you haven't seen, have you seen. Now we are heading to our last type of present tense, that is present perfect continuous tense. So जो अभी हमने present perfect tense में पढ़ा है एग्जैक्ट वही रहने वाला है. साथ में क्या ऐड हो गया उसमें, बीन प्लस ing. यूजेज देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस की क्या है. एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शंस दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू टिल नाउ. जब हमने बताना है कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है. I've been living in Ireland for almost 4 years. मैं आयरलैंड में 4 साल से रह रहा हूँ. Express recent actions that have clear evidence or result now. जब हमने कुछ अभी एक्शंस किए हो और जिनका हमने रिजल्ट बताना हो या बताना हो कि वो किस तरह के गए हैं, क्या उनका कंसिक्वेंस था. Her eyes are red because she's been crying all evening. उसकी आंखें लाल है क्योंकि वो सारी शाम रोती रही है. Typically used for shorter, more temporary situations है जहाँ हमने temporary situations के बारे में बताना हो. Have they been learning English this week? क्या वो इस हफ्ते इंग्लिश सीख रहे हैं. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या जानते हैं, द एक्शन कंटिन्यूड फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर, नाउ और स्टार्टेड रिसेंटली. कुछ ऐसा एक्शन जो पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए शुरू हुआ था या वो एक्शन जो अभी चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल मार्शल हैज़ बीन जॉगिंग, मार्शल जॉगिंग कर रहा है. ही हैज़ बीन जॉग फॉर एन आवर, उसने 1 घंटे के लिए जॉग किया था. Here are the few examples of present perfect continuous tense. My mother has been watching TV all afternoon. They have been watching The Lord of the Kings. My grandmother has been still eating her breakfast. Children have been playing computer games in the lodge for 2 hours. They haven't been studying their books for 6 days. The positive, negative of present perfect continuous tense. You have been starting, you haven't been starting, haven't you been starting. हम ये जानेंगे हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में. To clarify our doubts between present perfect and present perfect continuous, let's talk about their rules. In present perfect, we use subject plus has or have plus verb's third form. And in present perfect continuous, we uses subject plus has have plus been plus verb with ing. प्रेजेंट परफेक्ट में हम बताते हैं फिनिश्ड एक्शंस के बारे में जो काम हो चुके हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम ये बताते हैं जो काम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं.
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बताते हैं ऐसे काम जो खत्म हो चुके हैं। किड्स हैव प्लेड फॉर 2 hours, बच्चे 2 घंटे खेल चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम बताते हैं अनफिनिश्ड एक्शंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, किड्स हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों का खेलना या जो टास्क था हमारा, जो वर्ब है वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू है। In present perfect, we tell about permanent actions. I have taught English for 12 years. मैंने इंग्लिश 12 साल पढ़ाई है। In present continuous tense, we tell about the temporary actions like I have been teaching this class for an hour. मैं इस क्लास को 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ। अब टेम्प्रेरी एक्शन ही इसलिए बिकॉज यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सी क्लास है या क्या सब्जेक्ट है। इन प्रेजेंट परफेक्ट इट एम्फसाइजेज ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट किसी भी वर्ब का रिजल्ट बताता है। ही हैज़ रिपेयर्ड द कार, उसने कार को रिपेयर कर दिया है। बट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस इट एम्फसाइजेज ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये बताता है कि कोई भी वर्ब, कोई भी टास्क की कितनी देर के लिए चला है। He has been repairing the car for 2 hours. वो 2 घंटे से कार रिपेयर कर रहा है। So that's all for today, students. I hope you have understood about the present tense, and it's all 4 types. If you have any problem, any query, any doubt, please comment me. I will definitely reply you and solve your query. Thank you so much.